Bismillahirrahmanirrahim. First of all, the name of Allah. Allah is merciful for all. Welcome to Azad Jammu Kashmir textbook board. In this video lecture, we will discuss about computer science of class 6. Now students, we come on the point. हमारा chapter name क्या है? Operating system. Operating system, and then today my topic is operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम इसमें फर्स्टली देखते हैं OS. द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन. We need a software that it used to operate the hardware of the computer. This software is called the operating system. Your computer cannot perform anything without an operating system. Now, operating system. Operating systems perform all the functions like handling memory, processing, and interact between hardware and software, and it acts as an interface between the computer, hardware, and the user. Now, this is the first topic. OS, operating system. Second one, different operating systems. We saw book in slides. There are many operating systems. We saw in pictures. Now the third one is the today topic, functions of an operating system. The operating system performs a large number of functions. Some of them are given below. The operating system provides an interface between the user and the computer, and operating system recognize input from input device. It send output to output device. It controls the device attached to the motherboard. It manage all programs, applications on the computer. It manage computer networks. It manage different files stored in the computer. It manage computer memory. Okay dear student, first I recall the second unit. हमारा second unit क्या था? ICT devices. ICT means the abbreviation of information communication technology. जब हमने अच्छे से information communication technology को read किया and then समझा अपनी video lectures के जरिए, तो उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने performance देखी, input devices देखी, output devices देखी, memories देखी and storage देखी. Now I came to ऑपरेटिंग सिस्टम. किसी चीज को चलाना, अपने मैसेज को कन्वे करना और किसी दूसरे के मैसेज को अपने तक लेना. स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन स्टूडेंट्स अभी हमने देखी है कि ऑपरेटिंग मीन कि वी इंटरेक्ट बिटवीन ईच अदर. आपस में राब्ते को हम बोलते हैं ऑपरेट करना. किसी चीज को ऑपरेट करके आपस में कनेक्शन क्रिएट करना, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. आपस में कनेक्शंस को डेवलप करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स या बहुत सारी एप्लीकेशन या बहुत सारे मीडियाज के साथ बहुत सारे जराए हैं. सपोज वी सी लैपटॉप, कंप्यूटर, LED and mobile phone. These are the gadgets, and your ICT, information communication technology devices, provide the tools. These are the gadgets, and we use the tools. With the help of operating system, we understand how to operate it, how to manage it, how to do. With the help, हम इन चीज़ों से operating system की मदद से इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे और इनसे यूटिलाइजिंग या इनसे फ़ायदा ले सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो नाउ आई स्टार्ट सम फंक्शंस. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के तरीके को, उसकी कंपैटिबिलिटी को हम उसके फंक्शंस बोलते हैं. फर्स्टली, हम जब इसे कोई पैगाम देते हैं और ये पैगाम को प्रोसेस करके किसी दूसरे तक पहुंचाता है, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है. ये हमारी इनपुट को इनपुट डिवाइस तक कनेक्ट करता है, आउटपुट को आउटपुट डिवाइस तक कनेक्टेड करता है. जो कमांड हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ये उसको यूटिलाइज करता है और इसको आगे परफॉर्म करवाता है. तो नाउ दे कंट्रोल द आवर CPU सिस्टम. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मदरबोर्ड कहाँ होता है? बिल्कुल ठीक, CPU में होता है. अब CPU किसको अब्रीवेट कर रहा है? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट. सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है हमारे पास मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड को जो परफॉर्म करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको परफॉर्म कर रहा होता है, रिकॉग्नाइज कर रहा होता है हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारी चीज़ों को सेव कर रहा होता है. इवन दो हम लोग जो भी फोल्डर क्रिएट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, वो हमारे सिस्टम में सेव हो जाता है.
विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम हम कोई भी चीज किसी जगह पर रख नहीं सकते इन द इजी वे। ऑपरेटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट की वजह से ही हम लोग चीजों को आसान कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर आई पुट सम एग्जाम्पल, वो इस तरह से कि अगर आपके एक हाथ में दो तीन चार अगर कोई भी किसी चीज के ब्लॉक्स हैं तो आप इसके अंदर स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे। तो डेयर आपके लिए एक एग्जांपल है कि आप एक न्यू फोल्डर लेंगे, ये चारों फाइल्स उठा के उसके अंदर रख देंगे और इसको एज ए आइकन बना देंगे। तो स्टूडेंट्स, दैट्स अ वे। अगर हम एक हाथ में ज्यादा कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं तो एक सिस्टम के पास भी कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए हम फोल्डर्स एंड फाइल्स को मैनेज करते हैं। बहुत सारी फाइल्स को मिलाकर एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं और डिफरेंट फोल्डर्स को हमारे पास जो ड्राइवर्स होते हैं हम उनके अंदर रख देते हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे पास ड्राइवर्स होते हैं, उनके जरिए हम इजी टू यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूं स्टूडेंट आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बिलोंग किससे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मीन क्या है। ऑपरेटिंग, मैं एक बार फिर आपको स्टूडेंट्स रिकॉल करवाऊंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एब्रीविएशन क्या थी, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। हर चीज को ऑपरेट करने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियोस में हम लोग इसकी लैंग्वेज को देखेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उससे कम्युनिकेट करने के लिए। हम अगर आपस में बात करते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ रूल्स देखने पड़ते हैं। अगर हमने किसी से बात करनी है तो उसकी जबान को समझना पड़ता है। इसी तरह से कंप्यूटर की जबान को समझेंगे तो उसको ऑपरेट करेंगे। तो अब नाउ आई स्टार्ट द असेसमेंट। स्टूडेंट, असेसमेंट क्या है? बिल्कुल सही, वही प्रोग्राम्स जो हम पीछे से बनाते हुए आ रहे हैं कि आपको रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। Write the definition of operating system. How to operating system help in our daily life? How to operating system help in our daily life? And third one, it's most important questions. Write the functions of operating system. Write the function of operating system. Operating system, 3 questions हो गए. Fourth one, the how to manage the operating system. How to manage the operating system. Now students, this is your homework, research based. You go back home, आपने अपने सिस्टम पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, गूगल्स या डिफरेंट मीडियाज को यूज कर मीडियम्स को यूज कर आपने इस पे रिसर्च करनी है एंड क्वेश्चंस को रिसर्च बेस्ड रखे। आई नो कि आपकी बुक में बहुत अच्छा मटेरियल है, लेकिन यू वांट टू ऐड समथिंग मोर, तो इसके फंक्शंस आपने खुद से कुछ क्रिएट करने हैं, क्योंकि बुक के ऊपर रिकॉग्नाइजली लिखा गया है कि ये सम फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शंस आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं कि राइट डाउन सम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ टुडे माय टॉपिक इज विंडो एंड स्टेपिंग ऑफ विंडो। फर्स्ट आई गेव अस दैट कि हाउ मेनी टाइप्स आर विंडोज। फर्स्ट, विंडोज, अगर हम इसको विंडोज पर बात करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आती है विंडोज 98। इसको हम होम विंडोज भी बोलते हैं। सबसे पहले कौन सी विंडोज आती है? 98। डियर स्टूडेंट्स, ये कब लॉन्च हुई? 25 जुलाई 1998। विंडोज, इसको होम विंडो भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स कंज्यूमर एंड होम टाइप ऑफ पीपल्स जो घरों में बैठे हुए हैं उनके यूज के लिए विंडोज 98 डिजाइन की गई थी। और कब की गई थी डियर स्टूडेंट्स? 25 जुलाई 1998। डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर एक क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हैं कि राइट द नोट ऑफ विंडोज 98। Write the note of Windows 98. Now we come Windows 2000. हमारे पास एक नेक्स्ट विंडो आती है Windows 2000. Dear students, this is also consumer type Windows and इसको भी हमने Microsoft के प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए या उसको चलाने के लिए बनाया गया था। इसे क्रिएट किया गया था फरवरी 2000 में। कब क्रिएट किया गया था? फरवरी 2000 में। डियर, आप लोग रिकॉल करना चाहेंगे, डियर स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करना चाहेंगे फरवरी 2000 में इस विंडो को क्रिएट किया गया था। नाउ इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ विंडो इज XP. XP इज द स्टैंड बाय एक्सपीरियंसेस।
XP is the standby of experiences. So students, are you understand what I am saying? SP is standby the experiences. XP is launched by the customer, consumers and home type. All type of users use the XP window. And this is the very popular window in the working of window fields. Now I want to tell you about Windows 7. अब हम बात करेंगे Windows 7. My dear students, Windows 7 लॉन्च की गई थी अक्टूबर 2009 में. Dear students, कब लॉन्च की गई थी? 2009 में, अक्टूबर 2009 में लॉन्च की गई थी Windows 7. इसको हम विंडो विस्टा भी बोलते हैं. Dear student, the second name of Windows 7 is Windows Vista. My dear students, आप लोग मेरे साथ प्रोनाउंस करना चाहेंगे Windows Vista. Windows Vista भी इसको हम लोग एब्रीवेट करते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास नेक्स्ट विंडो कौन सी आई, तो विंडोज 10 आती है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्च हो रही है 10 जुलाई 2015 में. माय डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्च हो रही है 10 जुलाई 2015 में. इसको फर्स्टेस्ट विंडो बोला जाता है. आपको पता है कि दीज आर द वर्जन्स ऑफ विंडोज जो हमें हाई स्पीड्स प्रोवाइड करते हैं कि हम न्यू सॉफ्टवेयर और एप्स को कितनी जल्दी इंस्टॉल करें और उनसे अपने बहुत सारे काम जल्दी करें. और आपको पता है कि फंक्शंस को हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं. हमारी प्रीवियस वीडियोस में ICT स्टैंड बाय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किस चीज पर हम स्टैंड बाय करते हैं? ICT पे. ICT इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो आपको पता है कि न्यू आने वाली विंडोज भी डिजाइन कर ली गई है जिसको विंडो 11 का नाम दिया जाएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको लॉन्च किया जाएगा अक्टूबर 2025 में. माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बार फिर बताऊंगी कि इसको लॉन्च किया जाएगा अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा. दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जो कंज्यूमर के लिए होगा, कंज्यूमर ओरिएंटेड होगा एंड बिजनेस वर्किंग के लिए होगा. दे आर मोर देन फास्टर. ये न्यूज विंडोज पिछले आने वाली तमाम विंडोज से बहुत अच्छी और तेज स्पीड्स काम करती हैं. आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आया होगा कि हमने कौन कौन सी विंडोज आई और किन ईयर्स में आई और कौन सी विंडो अभी तक पाइपलाइन में मौजूद हैं जो आना है, जिस पर काम हो रहा है. वो कौन सी विंडो है आप मेरे साथ रिकॉल करना चाहेंगे? विंडोज 11 जो कि अक्टूबर 2025 को लॉन्च की जाएगी कंज्यूमर के प्रोग्राम्स के तौर पर. माइक्रोसॉफ्ट जिसको लॉन्च करेगा. नाउ डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको विंडोज अच्छे से समझ आई होगी कि ये विंडोज हैं क्या, ये कब लॉन्च की गई और इनके लॉन्च करने का मकसद क्या था. डेफिनेटली जिस तरह से माय डियर स्टूडेंट आपको एक छोटी सी हम बात करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन. यहां पर मैं रिकॉल करूंगी, हमने जनरेशन 1 पढ़ा था, जनरेशन 2 पढ़ा था, जनरेशन 3, 4 एंड 5. जिस तरह से कंप्यूटर ने अपने जनरेशन बदले हैं, इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स विंडोज की भी जनरेशंस आई हैं और दीज आर द जनरेशन ऑफ विंडोज. अब हम चलते हैं स्टेपिंग्स इनटू विंडोज. अब स्टेपिंग्स क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? फर्स्टली हम इसको थोड़ा सा रीड करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं. स्टेपिंग इनटू विंडो. ओके डियर स्टूडेंट, टू लॉग इनटू विंडो फॉलो these steps. Switch the system unit and monitor on. Windows lock screen appears. Write your password on pin and press enter. Windows desktop appear. The computer is now ready to use. The desktop of Windows consists of different elements. Okay dear students, जिस तरह से हमने रीड किया स्टेपिंग ऑफ विंडोज. माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने अपने CPU मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मॉनिटर हम किससे बोलते हैं? LCD या LED, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के स्विच और वायर्स को कनेक्ट करेंगे स्विच बोर्ड में एंड देन हम वेट करेंगे कि विंडोज प्रोसेसिंग करे और हमें स्क्रीन के ऊपर पासवर्ड टाइप की कोई चीज नजर आएगी. एक नेक्स्ट विंडो खुलकर आएगी जिस पे लिखा होगा कि एंटर योर पासवर्ड. वहां पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद वो एक न्यू विंडो ओपन कर देगी जिसे बोलेंगे हम लोग हमारा डेस्कटॉप होगा. अब डेस्कटॉप पर बहुत सारी चीजें डेयर आपको नजर आएंगी. इफ मैं इमेजिन ले रही हूं आपके लिए कि हमारे पास विंडोज XP है, तो विंडोज XP की एक स्क्रीन ऑन हो जाएगी जिसके ऊपर आपको डिफरेंट टाइप्स के साइड्स पर आइकन नजर आ रहे होंगे. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स. और नीचे हमें एक बार नजर आ रही होगी जिसको हम स्टेटस बार बोलते हैं. माय डियर स्टूडेंट, नीचे वाली बार को क्या बोलते हैं? बिल्कुल स्टेटस बार बोलते हैं. आपने स्टेटस बार को गौर से देखना है
हम इधर भी देख सकते हैं स्टेटस बार शो हो रही है। अब स्टेटस बार पर कुछ मोर आइकन आ रहे होते हैं, तो ये हर विंडो में डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो हमें प्रोग्राम्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। नीचे हमारे पास रिसर्च आ रही होगी, रिसर्च आ रही होगी। रिसर्च पर जाकर आपने कोई सी चीज आप डायरेक्ट सर्च करना चाह रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट आपको डायरेक्ट रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पर पड़े हुए किसी भी फोल्डर को खोलना चाहते हैं तो आप उस पर जाके क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आई होप सो आपको स्टेपिंग ऑफ विंडोज ओपन करने का तरीका प्रॉपरली आ गया होगा। अब हम इन स्टेपिंग्स को फॉलो करेंगे। नाउ अब मैं असेसमेंट बनाने लगी हूं माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम क्वेश्चंस यहां पर रेस करें तो राइट डाउन द नोट ऑफ स्टेपिंग इनटू विंडोज, राइट डाउन द नोट ऑफ स्टेपिंग इनटू विंडोज, ओके। एंड वेयर इज स्टेटस बार लोकेटेड, वेयर इज स्टेटस बार लोकेटेड, कि स्टेटस बार कहां पर पाई जाती है, ठीक है। और डेस्कटॉप पर हमने आइकन्स देखे, स्टेटस बार देखी, विंडोज की ऑपरेटिंग देखी कि हमने किस तरह से अपने सिस्टम को ऑन किया। सिस्टम को ऑन करने के बाद हमने पासवर्ड ऐड किया, पासवर्ड एंटर करने के बाद हमने जो चीज देखी वो स्क्रीन पर हमारी विंडो ओपन हो गई। हम उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।